दोस्त जब भी मेरी टीम टूटती थी ना, तो उस टीम के टूटने के बाद ना मैं हमेशा अपनी अपलाइन, जो मेरी एक्टिव अपलाइन थी, राइट, एक्टिव अपलाइन, तो उनको मैं हमेशा एक मैसेज किया करता था और मैं उनसे एक सवाल किया करता था, सर मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ और मेरी टीम टूट चुकी है और अब मैं मुझे अंदर से मैं टूट रहा हूँ। तो मेरी अपलाइन हमेशा मुझे एक चीज समझाती थी कि देख, हम भगवान नहीं है और कर्मा पे बिलीव करते हो, तो एक कर्म होता है कि लाइफ में कर्मा होता है, और कर्म हमारा क्या है, हमारा सिर्फ एक कर्म है कि वो है कि हमें सिर्फ लोगों को, हमें मार्गदर्शक एक रास्ता दिखाना है, सही रास्ता दिखाना है। वो ज्वाइन करेंगे, चले ना चले वो उनके ऊपर है, वो उनकी चॉइस है। ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದುಷ್ಯಂತ್ ಧಿಮಾನ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ದುಷ್ಯಂತ್ ಧಿಮಾನ್ ವೆಸ್ಟೀಜಿನ ಒಬ್ಬ ಯೂತ್ ಐಕಾನ್. ವೆಸ್ಟೀಜ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. XYZ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. XYZ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಶರ್ಟ್ ಪೀಸ್, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೀಸ್, ಆ ತರ ಒಂದು ಸಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ವಂತೆ. 9 ರಿಂದ 10 ತಿಂಗಳ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಏನು ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಪನಿ ಬಿಟ್ಟು ವೆಸ್ಟೀಜ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರು. ವೆಸ್ಟೀಜ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ವೆಸ್ಟೀಜಿನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ವಿಷನ್ ನ ನೋಡಿ ವೆಸ್ಟೀಜ್ಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೆಸ್ಟೀಜಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೆಸ್ಟೀಜಿನ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ 1200 rupees ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಐಡಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಹಳೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ 10,000 rupees ಇಂದ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಈ ವೆಸ್ಟೀಜ್ ಒಳಗಡೆ 1200 rupees ಒಳಗಡೆನೆ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಯೂತ್ ಹತ್ರ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗಲ್ಲ. 1200 ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೆಸ್ಟೀಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಇವತ್ತು 6 years ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ವೆಸ್ಟೀಜ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಇವತ್ತು ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ 5 lakh ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂತಾರೆ. 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕಮ್ ತಗೊಂತಾ ಇದಾರೆ. 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಇದೆ, ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ 65 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದೇನೋ 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದು BMW 5 Series ಕಾರ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ವೆಸ್ಟೀಜ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ ತಿರ್ಗಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. 8 ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, 18, 19, 20, 21 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ದಯವಿಟ್ಟು ವೆಸ್ಟೀಜ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಸರ್ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡವರು ವೆಸ್ಟೀಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 28 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ವೆಸ್ಟೀಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ. ಸರ್ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರು 26ನೇ ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸೊಳಗಡೆ BMW ಕಾರ್ನ ತಗೊಂಡು ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ. ಯಾರು 18, 19, 20 ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆನೋ 24, 25 ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ನನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಮುರಿಬಹುದು. ವೆಸ್ಟೀಜ್ ಆಸ್ ಎ ಕರಿಯರ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂಡ್ ನಾನೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ. ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು, ಮೇ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇದಾರೆ ಕೂಡ, ಯಾವ ಕಂಪನಿನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಜನ ನನ್ನ ಕಂಪನಿ ಒಳ್ಳೇದಂತ ಇದಾರೆ, ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯವರು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಒಳ್ಳೇದಂತ ಇದಾರೆ, ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯವರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿ ಒಳ್ಳೇದಂತ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಕಂಪನಿನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಮಾತು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕಂಪನಿನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಕಂಪನಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ವಿಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆನೋ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾವ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಚೀವರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದಾರೋ ಅದನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಂಪನಿನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಮಾತು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬರ್ಡನ್, ರೈಟ್? ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬರ್ಡನ್. ನನಗೆ ಹಿಂದಿ ಬರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ಬಿಡ್ಕಂತ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಸೊ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ. ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಲೌಡರ್ ದೆನ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾತುಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದು ಆಕ್ಷನ್, ಅವರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾ 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 ನೀವು ಕೂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಅಚೀವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರದು, ಅಚೀವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಈ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇನ್ನವರೆಗೂ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ರೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದುಷ್ಯಂತ್ ಜಿ, ಕ್ಯಾ ಹಾಲ್ ಹೈ? ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. अच्छा और क्या हाल है? मैं बहुत बढ़िया हूँ शब्बीर जी, आप बताइए, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ. और क्या चल रहा है दिल्ली में?
दिल्ली में वही लॉकडाउन की सिचुएशन बहुत ज़्यादा है और हम लोग लर्निंग पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, तो वही जूम मीटिंग वेबिनार्स वगैरह ये सब ही चल रहा है अभी तो फिलहाल। जी, ठीक है, तो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए ना हमारे लोगों को। जी जी जी। सो वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम दुष्यंत धीमान है और मेरे वेस्टिज में 5 साल हो चुका है। और 5 साल से पहले एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं, और एक ड्रीम था मेरा, जब मैं 5 साल पहले की बात करूँ, कि मुझे 25,000 का एक इनकम लेना है। क्योंकि एक माइंड सेट था मेरी, ठीक है, फैमिली का और हर किसी का माइंड सेट यही होता है कि गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब करना। 25,000 से 30,000 का मेरा ड्रीम इनकम था। सो जब ये फर्स्ट टाइम मैंने प्लेटफॉर्म देखा तो पता लगा कि यार मैं जितना इनकम सोचता हूँ उतना तो मैं टीडीएस भर सकता हूँ। सो माय डियर फ्रेंड, 5 साल हो चुका है इस बिजनेस के अंदर आज। और आप सबका ड्रीम होगा कि 26 साल की एज में बीएमडब्ल्यू लेना, राइट, और साल में 2 से 3 फॉरेन ट्रिप में जाना, अपने खुद का एक ड्रीम घर बनाना। तो आज माय डियर फ्रेंड, करीबन तकरीबन आज अपने बारे में बताऊं तो 1 करोड़ के आसपास की मेरे पास में ऑटोमोबाइल्स हैं, राइट, बाइक्स और गाड़ियों की कीमत 1 करोड़ के आसपास है। और साल में 2 से 3 मैं विदेश यात्राओं पे जाता हूँ, 2 से 3 बार, और कई सारे डोमेस्टिक ट्रिप लगाता हूँ। तो टोटली एक मैं फाइनेंशियली फ्री लगभग हो चुका हूँ, और मेरा टारगेट नेक्स्ट जो है वो 10 लाख टच करने का इस साल के एंड तक। सो द एज ऑफ 26, और पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है, स्टार्ट किया था वेस्टिज को मैंने। और आज 5 लाख रुपीज पर मंथ इनकम भी है, और बहुत सारी मतलब गाड़ियां हैं, जिसमें एक सबसे महंगी कार BMW 5 सीरीज है। तो यस, शुभ शबीर जी। यस, तो दुष्यंत जी, आपने वेस्टीज से पहले किसी और कंपनी के अंदर काम करते थे, XYZ, राइट, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर। तो आपने उस कंपनी में कितने साल काम किया? मैंने तकरीबन ज्वाइन करे हुए मुझे 2 साल हो चुका था, पर जो मैंने काम किया था एक्टिवली, जो मैंने सीरियस होकर काम किया था, उसमें 8 to 9 मंथ्स मैंने काम किया था। और जो मेरे वहां पे जो टोटल इनकम थी वो तकरीबन 9,000 रुपीज के आसपास थी। अ, राइट। अगर टीडीएस वगैरह सब कटा के बात करूं, सब कुछ, उस समय टीडीएस हैंडलिंग चार्ज जब कटता था, तो मेरे पास में रिसीव सिर्फ 7,000 रुपीज हुआ था। अच्छा, तो आपने एक्चुअल कौन सी एज में नेटवर्क मार्केटिंग में आपने अपना कदम रखा? 21। 21 ईयर्स ऑफ एज, या ओके। तो आज आपकी एज 27, राइट? या आई ट्वेंटी थिंक, सेवन ओके। तो आपने वो कंपनी छोड़ा क्यों, दुष्यंत जी? एक्चुअली आपने वो कंपनी छोड़ के वेस्टीज ज्वाइन की, तो रीजन क्या था इसके पीछे का? देखिए, फर्स्ट पहली बार तो ये कि जब मैंने वो फर्स्ट फर्स्ट टाइम जब नेटवर्क मार्केटिंग का प्रेजेंटेशन देखा था, तो हम्म, ऐसा नहीं था कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसी होती है। तो जो पहला चीज दिखाया गया मेरे लिए वही बेस्ट था। तो जब मैंने उसके अंदर काम करना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि बाइनरी कॉन्सेप्ट जो होता है, राइट, वो दिखने में बहुत आसान होता है, और हम्म, उससे करने लगो तो बहुत डिफिकल्ट होता है। और अभी फिलहाल तो मैंने एक चीज नोट करी कि पूरी, मतलब आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं है इस दुनिया के अंदर जिसने अपनी लगभग पावर लाइन, बाइनरी के अंदर पावर और दोनों लाइनें मैच करी हो। तो ये कॉम्बिनेशन कभी बन नहीं पाता, एक लाइन बहुत तेज हो जाती है, एक बहुत स्लो चलती है। तो वहां पे ना मेरा फेल होने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि 10,000 रुपीज की एक ज्वाइनिंग थी, और 10,000 रुपीज एक स्टूडेंट के पास नहीं होता था, राइट, और राइट। उसके बदले भी जो सामान लेना पड़ता था वो कंपनी जो देती थी, उसमें सूट लैंड का कपड़ा, हॉलीडे पैकेज, तो वही लेना पड़ता था। तो उसके अलावा कोई चॉइस नहीं थी कि हम उसे मैनुअली सिलेक्ट कर सके। तो फेल होने का बहुत बड़ा रीजन ये था कि स्टूडेंट के पास में पैसा नहीं था, और एक स्टूडेंट को एक ऐसी कंपनी चाहिए थी जिसके अंदर वो अपनी मर्जी का सामान ले सके, और उनकी जरूरत का सामान हो, और एक ज्वाइनिंग फीस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो, ऐसा नहीं कि आपको 10,000 रुपीज देना है। सो मैंने इसलिए उसको छोड़ना ही सही समझा, क्योंकि 2 साल के बाद मैं फेल हो चुका था, वहां पे सब लोग मेरे मना कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे में कमी है या कंपनी में कमी है। तो सब कुछ एफर्ट्स लगाने के बाद जब मैंने सब चीजें कर ली, तो उसके बाद फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, अब आगे नहीं हो सकता, इससे हम्म। मेरी स्टडी भी खराब हो जाएगी और मैं यहाँ से कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं इसे छोड़ता हूँ। अच्छा, आपने वेस्टीज को एट द एज ऑफ कितनी, कौन सी एज में आपने वेस्टीज ट्वेंटी ज्वाइन टू किया? 22, 22 मतलब या आप कौन से ईयर में वेस्टीज को ज्वाइन किया सर आपने? एक्टिवली अगर मैं बताऊं तो 2015 में स्टार्ट हुआ था मैं काम करना। और उससे पहले मैं उसी कंपनी में लगा हुआ था, थोड़ा सा कंफ्यूज था कि वेस्टेज करूँ ना करूँ, ये करूँ ना करूँ। तो करीबन 4 से 5 महीने तो मुझे ये सोचने में लग गया कि वेस्टेज पता नहीं सही होगा नहीं होगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा। तो जी। 2015 में मैं वेस्टेज में आया था, एक्टिवली काम करना शुरू किया मैंने। एंड 16 पे मतलब एक मेरे पास में डायरेक्टर अचीव हुआ 4-5 मंथ्स के अंदर। देन फिर धीरे धीरे करते हुए एक आज की डेट में यूसीडी लेवल मेरा है। जी, आफ्टर ज्वाइनिंग वेस्टीज क्या चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ा? मतलब ज्वाइन होने के बाद बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं ना, जी जी। कौन से भी इंडस्ट्री में सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलती, राइट? चाहे वो MLM हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो कहीं पे भी हो।
बट आफ्टर ज्वाइनिंग वेस्टीज आपको बहुत सारी चैलेंजेस आए होंगी, मतलब कैसी, किस किस्म की चैलेंजेस आपको भी आई? हम्म। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली एक चीज मैं आपको बताऊंगा। देखिए जब मैं कॉलेज में था उस टाइम पे मैं सेकंड ईयर में था अपने कॉलेज के, और जब मैंने वेस्टी स्टार्ट किया तो सबसे बड़ा जो चैलेंज मेरे लिए आया वो यही आया था कि जब मैं किसी के पास जब जाता था टेस्टमनीज बुक लेके, कार बुक लेके, रीडिंग लेडीज बुक लेके, तो उसमें कोई एग्जाम्पल नहीं था स्टूडेंट्स का। तो यस। जब मैं अपने लोगों के पास में जाता था तो वो लोग कहते थे कि इनकी एज में तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, तो ऐसा कोई एग्जाम्पल दिखाओ जिसने 25 या 26 या 27 की एज में ऐसी लग्जरी कार ली हो। पर मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उस टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि लोगों को, बच्चे स्टूडेंट्स को समझाना, क्योंकि मेरे पास कोई टेस्टमनी थी स्टूडेंट्स की। सेकंड चीज, डीएलसीपीज। जब मैंने स्टार्ट किया तो दिल्ली में सिर्फ दो ही ऑफिस थे, एक लाजपत नगर, दूसरा रमेश नगर, राइट। तो ये दो ऑफिस का डिस्टेंस बहुत दूर था, तो मुझे अगर 100 रुपीज या फिर 200 रुपीज का सामान भी अगर लेके आना है पर्सनल, तो मुझे तकरीबन 100 रुपीज का पेट्रोल डलवाना पड़ता था पहले, और 1 घंटा मुझे लगता था वहां पे जाने में। उसके बाद मैं वो सामान ले पाता था। और आज की डेट में अगर मैं बताऊं तो देखिए, डीएलसीपीज बहुत सारे हैं, प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, और टेस्टमनीज बहुत सारी है। तो आज की डेट में मुझे लगता है उस टाइम से सफल होना बहुत आसान है। अच्छा, हमने सुना था कि आप एक यूथ एम्पावरमेंट के स्टेज पे ठहर के आप मतलब अपनी स्पीच दे रहे थे कि जब जर्नी करते थे, आप लोग ट्रैवल करते थे ट्रेन्स के अंदर, तब भी आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, यानी आपको बाथरूम्स के मतलब ट्रेन के बाथरूम्स के अंदर बैठ के जर्नी करनी पड़ी, ऐसा कुछ मैं सुना था। राइट राइट, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए देखिए स्टार्टिंग का फेस होता है, क्योंकि और ये एक्चुअली सबके। दुष्यंत जी, एक्चुअली क्या होता है ना, आज का जो यूथ है, मतलब सारा यूथ नहीं है, कुछ बच्चे हम्म, हैं, कुछ लोग हैं जो वेस्टीज में ज्वाइन होते ही या किसी भी कंपनी में किसी भी प्लेटफॉर्म में ज्वाइन होते ही विद इन 6 मंथ्स 1 ईयर के अंदर इनको लाखों के पैसे चाहिए, राइट। शॉर्टकट सक्सेस चाहिए होता है, तो चैलेंजेस फेस करना बहुत जरूरी होता है। तो आपने भी ऐसी कोई चैलेंजेस फेस की यानी ज्वाइन होने के बाद? क्योंकि आज लोगों को दुष्यंत धीमान, एक यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर दुष्यंत धीमान देखते हैं लोग, और एक बीएमडब्ल्यू घुमाने वाला दुष्यंत धीमान देखते हैं, 10 लाख रुपए की बाइक घुमाने वाला दुष्यंत धीमान देखते हैं, मगर इसके पीछे का जो बैकग्राउंड वर्क जो आपने किया, इससे पहले जो आपने मेहनत की, उसके बारे में कुछ हम जानना चाहते हैं। बिल्कुल। देखिए शबीर जी, पहली चीज ये कि ये बात सबको पता है कि मेरा 1 लाख रुपए का चेक को टच करने में मुझे तकरीबन 3 इयर्स लग गए थे। अच्छा। तो 3 इयर्स तक मैं 1 लाख रुपए तक अपने चेक को टच नहीं कर पाया था। और हम्म। उसके पीछे यही रीजन था कि जो स्टार्टिंग का जो बेस बनाना होता है, जो नेटवर्क बनाना होता है, राइट, उनको रेगुलर सिस्टम समझाना। लोग टीम टूटती है, फिर से उनको बार बार जोड़ना, फिर समझाना, फिर रिपर्चेस के लिए बार बार उनको ट्रेनिंग करना, ठीक है, कंसिस्टेंसी के लिए ट्रेनिंग करना। तो इस बेस को बनाने में जो तकरीबन टाइम लगता है ना, वो वक्त लगता है तकरीबन 3 साल। तो 3 साल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग के, कि 3 साल के अंदर आपको सिर्फ एक बार बेस बना लिया, तो उसके बाद अगर आप काम भी ना करें, तो उसके बाद ऐसा हो सकता है कि आपका नेटवर्क, आप कुछ भी नहीं करेंगे फिर भी आपको कमा के देगा। मेरा जो स्टार्टिंग का फेज था, तो मैं आपको बताऊं कि मैं और शिवम जी हम दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया था। तो उस टाइम पे शिवम जी की एक बाइक होती थी होंडा की डेजलर। तो हम्म। डेजलर बाइक थी और मेरे पास एक अपाची बाइक थी। हम्म। अब डेजलर की जो एवरेज थी वो तकरीबन 45 किलोमीटर की थी, और हम्म। जो मेरी बाइक की एवरेज थी वो थी 35 की। हम्म। सो हम दोनों प्रेफर करते थे कि किसी तरह से हम ज्यादा एवरेज वाली बाइक यूज करें, क्योंकि हमारे पास में पैसा नहीं होता था। तो हम्म। 10 रुपीज शिवम जी मिलाते थे, 10 रुपए मैं मिलाता था, तो 20 रुपए का पेट्रोल डलवा के हम उस जगह में किसी तरह से पहुंच पाते थे। और कई अच्छा। बार तो ऐसा भी होता था कि बाइक चल रही है, तो जो फ्लाईओवर नीचे की तरफ होता था तो इंजन बंद कर दिया जाता था, तो वो बाइक अपने आप चलती रहती थी। तो वहां पहुंचे, किसी तरह से बाइक स्टार्ट करी। और कई बार ऐसा हुआ कि एक बार तो बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। तो हेलमेट पहन के, जैसे हाँ। कि कोई देख ना ले, ठीक है, हमने कोट पहना हुआ है, टाई लगा रखी है, देन हेलमेट पहन के हम धक्का लगा रहे हैं और किसी तरह से वहां पहुंचे। और बहुत मतलब चैलेंज एक इस तरह सा भी हुआ था, एक हादसा याद आया मुझे कि शनिवार का वक्त था और हम्म। दिल्ली में ऑटो एक्सपो लगा हुआ था। तो हम्म। मैं और शिवम जी कहीं और नोएडा से जा रहे थे, मैं कहीं और से जा रहा था। सेम डे सेम टाइम पे हम दोनों एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। और एक्सीडेंट होने से मेरे यहाँ से पूरा ये ब्लड ब्लड यहाँ से निकलने लग पड़ा, पूरे रैशेस पड़ गए, मेरी बोन से पूरा बहुत ज्यादा ब्लड आना स्टार्ट हो गया। शिवम जी का भी पता लगा रात को कि उनका भी एक्सीडेंट हो गया। अगले दिन फिर भी हम वेन्यू मीटिंग, संडे मीटिंग्स में पहुंचे हुए थे। इसके पीछे रीजन ये था कि हमने एक चीज पता थी कि कोई संडे नहीं छोड़ना। मतलब 52 जो संडे है ना, वो सारे के सारे अटेंड करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, चाहे तुम्हारी शादी हो, चाहे तुम्हारे घर में कोई बड़ा फंक्शन हो, चाहे कुछ भी हो। पर सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपको देना है, वो देना है आपको संडे मीटिंग को, मतलब यस। सिस्टम को, राइट। जैसे आपने बोला
कि मैं और शिवम जी एक बार हम दोनों एक सेमिनार अटेंड करने उस कंपनी का हम गए थे, और हमारे पास पैसा नहीं था। ठीक है, तो हमने किसी तरह से वो एक टिकट होता है ना, वो सस्ते वाला टिकट लिया अमृतसर का। तो जनरल प्लेटफॉर्म डब्बे में टिकट। बैठ, हाँ प्लेटफॉर्म टिकट जो होता है जनरल डब्बे वाला, वो लिया था। तो उस कोच के अंदर जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, ऊपर नीचे आसपास बैठे होते हैं, तो ऐसे ऐसे खड़े होके करीबन मतलब कई कई घंटे तक हम उस कोच में खड़े होके ट्रेवल करके, टॉयलेट खाली साइड में खड़े होके बैठ के, ठीक है, मतलब बहुत बुरा टाइम था वो, जब वो इस टाइम पे जब ट्रेवल किया। अच्छा, तो ऐसे कर तभी जाके आज BMW घुमा रहे हो आप 60-70 लाख के अंदर। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो दुष्यंत जी, एक्चुअली क्या है, हम जॉब नहीं कर रहे, वी आर डूइंग बिजनेस, राइट, वी आर या एंटरप्रेन्योर्स, हम नेटवर्क MLM के अंदर है, हम नेटवर्क मार्केटिंग में है, तो वी आर बिजनेसमैन। तो बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आर कॉमन, राइट। तो बहुत सारे लोगों की टीमें बनती है, बनने के बाद टूटती है, राइट। कोई और कंपनी वाले आए, हमारी टीम को उठा के ले गए, या किसी के पेरेंट्स ने उनको बोल दिया कि भाई ये सब क्या है, ये सब बिजनेस आपको कुछ नहीं देगा, ये सब झूठे झूठी बातें बोलते हैं, ऐसे कहते हैं, राइट। तो आपकी भी क्या टीमें टूटी? बिल्कुल सर, मैं मेरी टीम, मुझे याद है कि जैसे ही मेरा चेक 50,000 पहुंचा था, हम्म। तो उस टाइम पे कोई कंपनी आ गई थी जो कि कैथलिक बेस्ड कंपनी थी, राइट, हम्म। और इन्वेस्टमेंट प्लान था। तो हम्म। वो कंपनी आई, और मेरी जो हैवी लाइन थी जिसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा था, उस हम्म। लाइन के कई सारे लीडर उसी टाइम टूट के चले गए वहां से, अच्छा। राइट। फिर से बट कुछ लोगों ने विश्वास किया, उनके साथ फिर बनाया, राइट। और फिर वो टीम, एक कंपनी और आई, फिर वो लैग फिर से दोबारा टूटी। फिर उसके बाद विश्वास किया कुछ लोगों ने, कुछ लोग रह गए। और हम्म। आज के डेट में अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा ही हुआ कि ये टीम टूटती है, दोबारा से कुछ लोग रह जाते हैं, फिर टूट के कुछ लोग रह जाते हैं। और हम्म। दोस्त, जो कुछ लोग रह जाते हैं ना, यही लोग होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं, और यही लोग आज के डेट में मेरी टीम के अंदर 1 लाख से लेके 5 लाख महीना कमा रहे हैं। और जिन लोगों ने विश्वास नहीं किया, आज वो, उनकी लाइफ एकदम खराब हो चुकी है, और शायद उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी नहीं है कि वो आज महीने का 20,000 भी कमा सके। अच्छा। ओके, तो जब टीमें टूटी, आपने मतलब अपने आप को कैसे मोटिवेट किया? हाँ, मैं एक बार समझ नहीं पाया, फिर से बोलिए, हाँ, आवाज नहीं आई जब अभी। जब आपकी टीम टूटी, एक या दो हम्म, टीमें जब भी टूटती हम्म, थी आपकी टीम, क्योंकि कभी कभी होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरी टीम के साथ भी ऐसा हुआ है कि बहुत सारे हम मतलब एक्सपेक्टेशन कर रखते हैं कि भाई ये बंदा हमें छोड़ के नहीं जाएगा, ये बंदा लाइफ टाइम हमारे साथ जुड़े रहेगा, राइट, हमारे साथ ये काम करेगा, बट वही बंदा कभी नेगेटिव होके या किसी की बातों में आके, राइट, या इससे अच्छा बेहतर प्लान अगर वहां पे मिल गया, या इससे ज्यादा पैसे अगर दूसरी कंपनी वाला ऑफर कर दिया, यानी कि आप यहाँ पे जितने एक साल में जो कमाते हो, यहाँ पे हमारी कंपनी में आप 6 महीने में कमा लोगे, ऐसा कुछ लालच अगर दिखा दिया किसी कंपनी वाले ने, तो वो बंदा छोड़ के जाता है, राइट। तो जब आपके टीम के कोई बंदे अगर ऐसे छोड़ के दूसरी कंपनी में गए, या नेटवर्क मार्केटिंग ही छोड़ दिए, जब आपकी टीम टूटी, तो आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया फिर से नई टीम बनाने के लिए? राइट। मैं यही चीज, देखिए आज आपने भी एक बात बोली कि BMW में ऐसे नहीं घूम रहा, और ये मेरा ड्रीम था। देखिए मुझे दो चीजें बहुत पसंद थी, राइट। फर्स्ट हम्म। चीज एक ट्रैवल फंड, हम्म। घूमना फिरना मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरी चीज मुझे ऑटोमोबाइल्स, बाइक्स, गाड़ियां, लग्जरी कार्स मुझे बहुत पसंद है। हम्म। हम्म। और मेरे रूम के अंदर मैंने अपने सारे ड्रीम्स की फोटो मैंने सामने दीवार पे लगा रखा है, ठीक है, और पीछे, आगे पीछे, हर जगह लगा रखा है। हम्म। और मैं सोने से पहले और उठते वक्त मैं उन सपनों को देखता हूँ, राइट। आज तो वो सपने पूरे हो चुके हैं, बट मैंने उन सपनों को फिर से आगे मतलब अपग्रेड किया है कि मुझे नेक्स्ट क्या चाहिए, घर चाहिए मुझे, ठीक है, मुझे कहाँ कहाँ घर चाहिए, वो मैंने सब लिखा हुआ है। हम्म। सो दोस्त, जब भी मेरी टीम टूटती थी ना, तो उस टीम के टूटने के बाद ना, मैं हमेशा अपनी अपलाइन, जो मेरी एक्टिव अपलाइन थी, राइट, एक्टिव अपलाइन, तो हम्म। उनको मैं हमेशा एक मैसेज किया करता था, और मैं उनसे एक सवाल किया करता था, सर मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, और मेरी टीम टूट चुकी है, और अब मैं मुझे मतलब अंदर से मैं टूट रहा हूँ। तो मेरी अपलाइन हमेशा मुझे एक चीज समझाती थी कि देख, हम भगवान नहीं है, और कर्मा पे बिलीव करते हो, तो हम्म। एक कर्म होता है कि लाइफ में कर्मा होता है, और कर्म हमारा क्या है, हमारा सिर्फ एक कर्म है कि वो है कि हमें सिर्फ लोगों को, हमें मार्गदर्शक एक रास्ता दिखाना है, सही हम्म। रास्ता दिखाना है। वो ज्वाइन करेंगे, चले ना चले वो उनके ऊपर है, वो उनकी चॉइस है, ठीक सही है। है। बस तुझे अपना कर्म, तुझे ये करना है, तेरा कर्म ये है कि तुझे तेरे सपनों तक पहुंचने के लिए, तुझे तेरे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, ठीक है, तुझे डिफोकस नहीं होना। बहुत सारी कंपनी मेरे पास भी आई, बहुत सारे लोगों ने मुझे भी ऑफर किया, बहुत सारा पैसा ऑफर किया, बट यही नतीजा था कि मैं फोकस रहा, और फोकस रहने की वजह से आज मैं महीने का 5 लाख रुपीज कमा रहा हूँ, और BMW चला रहा यस। थैंक यू सो मच सर। और आपने इस इंडस्ट्री में आके अब तक, मतलब आपने 21 ईयर्स ऑफ एज से इस इंडस्ट्री के अंदर हो, राइट। तो 6-7 साल का आपको एक्सपीरियंस है MLM का। तो इस इंडस्ट्री में इन 6-7 सालों में आपने क्या क्या नई चीजें सीखी?
वेस्टिज में आके सबसे पहली चीज देखिए, मैं उस कंपनी में था तो मैंने इन्विटेशन सीख चुका था मैं, और फॉलोअप मुझे आता था। बट वेस्टिज में आके जो मुझे सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे लगा था वो था कि मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइनिंग अमाउंट बहुत सस्ता था, तो हर कोई इंसान 1000 रुपीज में ज्वाइन कर लिया करता था, बट उन लोगों को संभालना कि उनको सिस्टम से कैसे जोड़ना है। तो मैंने वेस्टिज में आके जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखी वो थी मैनेजमेंट, कि कैसे लोगों को मैनेज करना है, सिस्टम क्या होता है, मैंने सिस्टम को समझा कि, और माइंड पावर वर्कशॉप्स के बारे में मुझे नहीं पता था, तो कुछ जैसे दीपक सर का एक प्रोग्राम होता है लीप प्रोग्राम, लीप राइट, और सिद्धार्थ सर का एक प्रोग्राम होता है एसबीसी, सक्सेस बाय चॉइस। तो ऐसे प्रोग्राम्स में जब मुझे पता लगा कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो माइंड सेट के ऊपर प्रोग्राम्स होते हैं, तो ऐसे प्रोग्राम से मैंने जाना स्टार्ट किया, और इन प्रोग्राम में जब मैं गया तो मुझे सच में पता लगा कि ये प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम्स है कि कोई भी इंसान अगर इस प्रोग्राम में जाए और साल में 3 बार अगर इस प्रोग्राम को अटेंड कर लेता है, तो डेफिनेटली उसका चेक 1 साल में 1 लाख रुपीज टच करेगा ही करेगा। क्योंकि जब मैं वेस्टिज के अंदर आया था तो धर्मेंद्र मान सर ने एक कार बुक खोल के दिखाई थी। उस कार बुक के अंदर कुछ ऐसे लोग भी थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, बट मैं एक चीज देख रहा था कि यार ये पढ़े लिखे नहीं है और फिर भी BMW जैसी कार में घूम रहे हैं और महीने का 5-5 6-6 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो ऐसा कैसे? तो पता लगा कि वेस्टिज का सिस्टम पूरी जान लगा देता है हमारे सपने पूरे कराने के लिए, और फिर उस सिस्टम को मैंने 6 साल में समझा, और आज भी समझ रहा हूँ। मुझे पूरा सिस्टम समझ नहीं आया है कि सच में अगर सिस्टम है क्या, इस सिस्टम की बहुत पावर है। अच्छा, ओके, ग्रेट। तो एक लास्ट 2 सवाल है मेरे आपसे। जी। तो उसमें से एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि आज बहुत सारे लोग, मैं सिर्फ यूथ की बात नहीं कर रहा, अक्रॉस इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, मगर वो लोग कंफ्यूज हैं कि हम कैसी कंपनी को चूज करें। तो आपके अकॉर्डिंग एक सही MLM कंपनी को कैसे चुने? जी, देखिए सबसे पहली चीज़ उस कंपनी के अंदर क्या, सबसे पहली चीज़ हमें ये देखनी है कि इस कंपनी को वक़्त कितना हुआ है। देखिए कोई भी कंपनी जो 10 साल से कम वक़्त होता है, तो मैं बिल्कुल भी मना करूँगा उस कंपनी को ना चूज़ करें। क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं कि 10 साल से पहले-पहले 99% कंपनियाँ खत्म हो जाती है। आप पूरे इंडिया के अंदर इतिहास उठा के देखिए, आप कोई भी इतिहास उठा के देखिए, अब ये पता लगेगा कि 99.9% कंपनी स्टार्टिंग के 10 साल के अंदर ही अंदर खत्म हो जाती है। पहले 5 साल पहुँचना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, पर 5 साल के बाद 10 साल तक पहुँचते हुए बहुत सारी कंपनियाँ खत्म हो जाती है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि देखिए प्रोडक्ट उस कंपनी के अंदर सबसे पहली चीज़ कि प्रोडक्ट्स सबके लिए होने चाहिए। जैसे यूथ के लिए प्रोडक्ट्स होना चाहिए, लेडीज़ के लिए प्रोडक्ट्स होना चाहिए, ठीक है? और एक बुजुर्ग के लिए प्रोडक्ट्स होना चाहिए, ओल्ड मैन के लिए होना चाहिए, राइट? और किसी यंगस्टर के लिए, तो हर कैटेगरी के प्रोडक्ट उसके अंदर होना चाहिए, राइट? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसकी नींव, जो उस कंपनी के ओनर हैं, सबसे पहली चीज़, एक इम्पोर्टेंट चीज़, उस कंपनी के जो ओनर है, देखिए जो मैंने लास्ट बार अपनी कंपनी में गलती करी थी, वो यही गलती थी कि जो मेरी पुरानी कंपनी थी, उस कंपनी के जो ओनर थे, उन्हें कंपनी चलाना नहीं आता था, उन्हें सिर्फ नेटवर्किंग करनी आती थी। और जब उन्हें नेटवर्किंग करने आती थी तो वो इंसान नेटवर्किंग के अंदर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी नेटवर्किंग उनको करने आती थी, बट वो कंपनी चलाने की गलती ये हुई कि उन्होंने अपनी कंपनी खोली और कंपनी डुबा दी। और होता क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसी कंपनियों के चक्कर में पड़ जाते हैं जिनकी कंपनी के मालिक ने सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग करी है, कंपनी नहीं चलाई। तो दोस्तों, कंपनी चलाना और नेटवर्क मार्केटिंग करना दोनों डिफरेंट है। तो मैं ये चाहूंगा कि देखिए आप उस कंपनी के ओनर को देखिए, क्या उस कंपनी के ओनर को कंपनी चलाने का एक्सपीरियंस कितना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या वो कंपनी कोई नेटवर्कर तो नहीं था? अगर नेटवर्कर है तो उस इंसान ने कोई कंपनी पहले चलाई है? तो 99% यही वो लोग थे जिन्होंने कंपनी डुबाई है, क्योंकि इन लोगों ने पैसा कमाया और जाके अपनी कंपनी खोल दी, और कंपनी खोलने के बाद तो कंपनी डुबा दी। अच्छा, तो मतलब जिसको मैनेजमेंट करने की स्किल्स ज़्यादा है, जो ऑलरेडी दूसरी कंपनी के अंदर मैनेजमेंट का काम करे हैं, वो कंपनी चला सकते हैं। जो मार्केट के अंदर नेटवर्क, मतलब नेटवर्क बनाना जो सीखते हैं, राइट, उनको ऐसा नहीं कि वो कंपनी नहीं चला सकते, मगर उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कंपनी चलाना, राइट, आपका ये कहना है। ओके, जी। बहुत अच्छा आपने समझाया दुष्यंत जी। और मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये जो 26-27 ईयर्स ऑफ एज है, एक्चुअली ये एज होता है हम सोचकर अपना करियर किस में लगाएं, कौन से प्लेटफॉर्म में लगाएं। इस उम्र में कई लोग सोचते हैं, कई लोग ने, कई बच्चे सोचते हैं, राइट। तो इस उम्र के अंदर जब लोग करियर बनाने के बारे में सोचते हैं, आप 70 लाख की BMW घुमा रहे हो, आपको कैसे फील होता है? जी, सबसे पहली चीज शब्बीर जी की, एक स्टूडेंट, ठीक है, देखिए स्टूडेंट सबसे पहला जो होता है ना, उसका माइंड ना फोकस नहीं होता। सबसे हम्म पहले उसका माइंड कॉलेज में जाता है, कॉलेज में जाके वो क्या चीज देखता है, या गर्लफ्रेंड बनानी है, राइट, हम्म मस्ती मारनी है, राइट,
और एंजॉय करना है जिंदगी को, पार्टीज में जाना है, पब्स में जाना है, डिक्स में जाना है। मतलब कि वो छोटी सी जो मस्ती होती है ना, सिर्फ 3 साल की, जो ग्रेजुएशन टाइम में चलती है, तो एक यंगस्टर उस मस्ती के अंदर पूरा डूब जाता है, उस मस्ती को एंजॉय करने के लिए डूब जाता है। और मैं दोस्त, मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली दिल्ली में रहता हूँ, और मुझे शायद गर्लफ्रेंड बनाने का और मस्ती मारने का आपसे ज्यादा मौका था, राइट। और ऐसी बात भी नहीं है, मैं दिखने में भी थोड़ा बहुत ठीक हूँ, राइट। और सब कुछ था मेरे पास में, बट मैंने इस लाइन को नहीं चूज किया, क्योंकि मुझे पता था कि यार 3 साल की मस्ती जिंदगी तबाह कर सकती है। तो 3 साल फोकस करते हैं नेटवर्किंग के अंदर, और 3 साल के बाद जो पैसा आएगा, उसके बाद फिर जो मन करे वो करेंगे। जो आज बीएमडब्ल्यू, जो आप अब कर रहे हो। जो मैं अब कर रहा हूँ, एग्जैक्टली क्योंकि उस टाइम पे मुझे ये लगता था यार कि जब मैं कॉलेज में था, तो एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ, तो उस समय जब मैं पैदल जाता था, तो पता लगा यार गर्लफ्रेंड ऐसे नहीं बनती, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए बाइक चाहिए होती है। तो जब बाइक ले ली तो पता लगा नहीं यार ऐसे नहीं बनती यार, उसके लिए तो गाड़ी चाहिए होती है। फिर गाड़ी पे जब ले ली तो उसका पता लगा नहीं यार ये गाड़ी नहीं, बीएमडब्ल्यू चाहिए होती है। तो ये तो चलता ही रहता है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, जितने भी लोग है ना, जितने भी करियर बनाने के लिए सोच रहे हैं, मैं 3 साल बोलूंगा, 3 साल आप लोग ना अपनी बिल्कुल फोकस हो जाइए नेटवर्किंग के लिए। क्योंकि 3 साल के बाद जब आपके पास में ये गाड़ी होगी ना, जो पीछे चाबी लगी है, देखिए ये वाला लोगो जब आपके पास में होगा, बाय गॉड कह रहा हूँ, आप जिस चीज पे हाथ रखेंगे ना, जहां जहां जाएंगे, वो आपको फॉलो करेगा और आपको एक्सेप्ट भी करेगा। 3 साल आप तो करेंगे तो सिर्फ इंडिया में कर सकते हैं, 3 साल छोड़ के अगर 3 साल वेस्टिज कर लेंगे तो लंदन में जाके कर सकते हैं, राइट। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 3 साल के बाद इंटरनेशनल ट्रिप लगना शुरू हो जाएंगे आपके। हाँ। तो आपने अब तक कितने फॉरेन ट्रिप्स किए और कौन सी कंट्रीज घूमी? हाँ, फर्स्ट मैं दुबई एंड अबू धाबी, सेकंड था मेरा जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, राइट। एंड उसके बाद मैं गया फिर पटाया, देन उसके बाद फिर मैं गया था मलेशिया, मलेशिया के बाद लंदन, लंदन में मैनचेस्टर भी गया था। और उसके बाद फिर मैं साउथ अफ्रीका में केप टाउन एंड जोहान्सबर्ग, और थाईलैंड। ठीक है, तो ये करीबन 8 से 7, 8 कंट्रीज में घूम चुका हूँ यहाँ से। अच्छा, ओके। तो थैंक यू सो मच दुष्यंत जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें आज हमारी टीम्स को, मतलब जितने भी लोग देखेंगे ये वीडियो, सबको आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। थैंक यू सो मच। और कुछ आप वेलकम शबीर सजेस्ट जी। सजेस्ट अगर करना चाहते हो आज के यूथ को, क्योंकि आप तो वेस्टीज कंपनी के अंदर एक जाने माने यूथ आइकॉन है, राइट। तो आप हमारे देश के यूथ्स को क्या मैसेज देना चाहते हो जाते जाते? जी, देखिए जैसे कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, ठीक है, जो मुझे आज सुन रहे हैं, और अगर मेरी अगर कोई आपके कन्नड़ में, ठीक है, मैं बोल नहीं पाऊँगा, मैं हिंदी में ही बोल पाऊँगा, मैं आपको हिंदी में एक मैसेज देता हूँ, वो आपको शब्बीर जी कन्वर्ट कर देंगे, राइट। तो देखिए सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बोला, 3 साल बहुत महत्वपूर्ण है आपके, राइट। और 3 साल, ज़िंदगी के 3 साल ना आपको पूरी ज़िंदगी की रॉयल्टी दिला सकते हैं। तो मैं सभी यंगस्टर से एक मैसेज दूंगा कि कुछ पूंजी लगा के इस बिजनेस के अंदर, आप इस बिजनेस को हल्के मत लीजिएगा। कुछ पूंजी लगा के, मतलब कुछ पैसा लगा के, कुछ टाइम देके, आप इस बिजनेस को कई जनरेशन तक पैसा पहुंचा सकते हैं, राइट। और आज अगर आप इस चीज को समझ पाते हैं, और अगर आप कई सारे टेस्टिमनी देख पाते हैं, और वेस्टिज एक राइट प्लेटफॉर्म है आपके लिए। जो देखिए, अगर ऐसा नहीं होता तो आज मेरे पास भी कोई बीएम जैसी गाड़ी ना होती, शिवम जी पे भी आज ऑडी जैसी गाड़ी ना होती, तो हमारी टीम के अंदर इतने सारे लोग हैं, 100 से ज्यादा लोग, स्टूडेंट्स हैं, जो आज 1 लाख रुपीज से अब कमा रहे हैं, राइट। और पता नहीं करीबन 40 से 50 लोग ऐसे हैं जो गाड़ियां चला रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि सिस्टम में बहुत दम है, राइट। इस सिस्टम में बहुत दम है। और तभी मैं आज 26 की एज में बीएमडब्ल्यू जैसी कार चला रहा हूँ, 7 से 8 फॉरेन ट्रिप में घूम रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि वेस्टिज में तो पावर है, तो कमी है कहीं ना कहीं, वो इंसान के अंदर कमी है। और इंसान में कमी कभी नहीं होती, उसके स्किल्स में कमी होती है। उस स्किल्स को लगातार अगर हम डेवलप करते जाएंगे, तो 100% आप दोस्त, आप भी मुझसे पहले आप बीएमडब्ल्यू में बैठ सकते हैं। और लास्ट फाइनली मैं आपको ये बोलूंगा शबीर जी, कि जिनकी एज 19, 18 या 21 है, तो सर मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि जब मैं वेस्टेज में आया था, तो मैंने अपने अप्लायंस से पूछा था कि सर, वेस्टेज में सबसे पहला रिकॉर्ड किसने बनाया गाड़ी लेने का। तो पता लगा 28 की एज में कोई गाड़ी बीएमडब्ल्यू ली थी। मैंने कहा सर मैं इसे तोड़ूंगा। मैं 26 में ली। मैं आपको भी चैलेंज करता हूँ दोस्त, और आपके पास मौका है बहुत अच्छा, कि आपके पास मौका है बहुत अच्छा, कि आप 25 में मेरा रिकॉर्ड तोड़िए, और रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए है। तो थैंक यू सो मच शबीर जी। थैंक यू सो मच दुष्यंत जी, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। आपने बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें आज यूथ से लेके सीनियर सिटीजन तक हर कोई वेस्टीज के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपना करियर बना सकता है, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।